1. Predicament. तकलीफ दे सूरत, एक ना खुशगवार, परेशान कुन, खतरनाक सूरत हाल। 2. Repay. वापस अदा करना, कुछ बदले में देना, जवाब में देना, सिले में मलना, जजा देना। 3. Creditor. कर्ज खाक कर्ज दहिंदा, साहूकार, लेनदार, महाजन। 4. Borrow. मांगना उधार लेना। 5. Protector. महफ्ज, निगहबान, हाफिज निगाहबान सरपरस्त, हामी, वली, मतनज़्म, दिफा करने वाला, निगरा। 6. Considerably. खासा काफी हद तक बहुत, काफी, माकूल। 7. Repayment. अदायगी, चेकवती, वापसी, मुआवजा, जजा अजाला। 8. Shrank. सुकरा, कम हुई साइज और अमानत में कोई चीज कम हो गई। 9. Accumulate. ढेर लगाना, जमा करना, समेटना, अंबार लगाना, यकजा करना, बटोरना, फराहम करना। 10. Midst. दरमियान, दौरान, बीच, दरमियान में, वस्त में, बीच में। 11. Debilitate. कमजोर करना, ज़ईफ बनाना, नातुआ करना। 12. Ensure. यकीनी बख्श बनाना, यकीन कर लेना, पक्का कर लेना, तैयार करना, यकीनी सूरत देना, बीमा कराना। 13. Utilize. इस्तेमाल करना, फायदा उठाना, बरतना, इस्तेमाल करना। 14. Industrialist. सनतें लगाना, सनतें कायम करना, सनतकारी करना, सनती बनाना, बड़ी सनतें मुनज़्ज़म करना। 15. Sharpest. तेज तरीन, सबसे ज्यादा तेज। 16. Competitiveness. मुकाबलता बेहतर होना, मुकाबला बेहतर होना। लोगों और तंजीमों का एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने की हकीकत, दूसरों की तरह अच्छा और बेहतर होने की हकीकत। 17. Lack. कमी, कोताही, नक्स, कल्लत, फुकदान, हाजत, कमियाबी, जरूरत, कल्लत होना, कमी होना, नाकाफी होना, मुहताज होना। 18. Substitution. मुतबादिल, बदल, का मकाम, तबादला। 19. Untaxed. जिस पर टैक्स ना लगाया गया हो, जिस पर महसूल ना लगाया गया हो, जिस पर टैक्स वाजिब ना हो। 20. Stunted. रुका, गैर कामिल नमू वाला एकोटा ठिठरा, मामूल के साइज में बढ़ने या तरक्की करने से रोक दिया गया। Debt repayment problem. Miftah Ismail. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 14, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@DawnVocabulary. Pakistan owes the world about $100 billion and has to repay $21 billion to foreign lenders during the current fiscal year. And during the next 3 years, it will have to return similar or larger amounts each year totaling about $70 billion. So what happens 4 years from now? Will we have repaid about $90 billion to our creditors and owe only $10 billion? Unfortunately, no. We have no resources to repay our lenders. We will just have to try to borrow from one creditor to pay off another. Hence 4 years from now, we will have to repay the world more than $21 billion we have to pay this year, and a little more each year after that. Therefore, Pakistan will continue to slide more and more into debt, unless we try a novel idea, export more and run a current account surplus. Then and only then will we be able to pay back the world without borrowing from someone.
But until then we are in a tight spot. To understand how we got to this predicament, let's back up a bit. When Pakistan became part of the war against Al-Qaeda and their Afghan Taliban protectors, much of our external debt owed to the West was written off. So we were left with considerably reduced debt repayments, and our foreign exchange requirements shrank. For years from now, we will have to repay the world more than $21 billion we have to pay this year. Our primary need for foreign exchange after 2002 was to finance our current account deficit, which is the excess of imports over exports and remittances. As we accumulated CADs every year, our debt increased every year. Remember, because we don't run current account surpluses, and hence never earn net foreign exchange, we only borrow foreign exchange from one source to repay another, and our debt is never repaid and only grows. After Gen Musharraf's government in 2007 to 2008 ran Pakistan's highest CAD, the incoming PPP government had to reduce this deficit by slowing the economy down. But once the economy slowed, our foreign exchange borrowing requirements came down and the economy more or less stabilized. Because Pakistan's economy wasn't doing well and we weren't in an IMF program, the world wasn't willing to lend to us and our foreign exchange borrowing didn't go up much. However, after 5 years of drift, we were in the midst of a debilitating power shortage by 2013. Enter the PMLN, and two things happened. 1. We entered into an IMF agreement, and 2. An agreement was reached with China on CPEC. Now we could get investments and borrow from China for power plants and other infrastructure, and borrow from international bond markets to pay for our CADs. The CPEC borrowing, however, was the right thing to do as we really needed power, road, and gas infrastructure. The problem, however, was that as we doubled our power producing capacity in those years, we didn't double our industrial production or exports during those 5 or the ensuing 4 years. So today, whereas our debt servicing requirements for those power plants and gas and road infrastructure has increased, our ability to pay hasn't. This doesn't mean it was wrong to set up power plants. It means we didn't utilize the power from these plants well. Rather than set up factories, we built more malls and Shaadi halls. It should be pointed out that since most power and gas came online near the very end of the PMLN's tenure, it couldn't really have industrialized. However, even within those 5 years, as a result of a fixed exchange rate, Pakistan's export to GDP took its sharpest downward turn in our history. Therefore, the money borrowed from commercial banks and Eurobonds was spent on financing CADs. From 2018 onwards, the PTI tried to reduce the CAD but never appreciated the connection between the current account and fiscal deficits. During its 4 years, tax to GDP fell significantly and we ran the largest budget deficits in our history. PTI added 78% of all debt incurred in the previous 71 years and thus ensured we would run not just large fiscal but also large current account deficits. It is important to understand how budget deficits cause CADs. When our government runs a deficit, it has to borrow to finance it. This money can only either come from the surplus of local private savings over investment or from abroad. But since there is no surplus of local savings, money to finance our fiscal deficit comes from abroad in the shape of imports financed on credit, giving rise to the CAD. Another thing the policymakers must understand is that now it's not enough to reduce the CAD to get out of problems. With large debt repayments, we will either need to borrow more, thus requiring a healthy economy, or earn foreign exchange through exports. How do we get out of this predicament? The answer remains simple but very difficult. We cut the fiscal deficit to below the growth rate, export more to bring the current account into balance, privatize to pay off debt and improve economic efficiency, and bring in considerably more foreign investment to improve our competitiveness. Privatization requires courage and consensus that our leadership has lacked. Foreign investment requires, above all, peace and security that our civilian and military leaderships have failed to provide for over 2 decades. Exporting more requires a shift from the import substitution model and an understanding of economic reasoning that, unfortunately,
most of our policymakers have lacked over the years. Finally, cutting deficits will mean reducing all current expenditures to below the inflation rate, taxing the untaxed, such as retail and wholesale trade, a fixed tax on agricultural land, a reduction in federal money given to provinces, etc. These are all hard steps, but necessary for growth. But look at the hardship our no-growth economy is causing. Only 1 out of 36 people on this earth is a Pakistani, but 1 out of 10 uneducated children is a Pakistani. Our children are twice as likely as the world average to be stunted and 3 times as likely to be wasted. The hard part should not be to make difficult reform decisions. It should be to realize that tonight millions of kids in Pakistan will go to sleep hungry. The writer is a former finance minister. Published in Dawn, January 14, 2023. पाकिस्तान पर दुनिया का 100 अरब डॉलर वाजिब अदा है और रवा माली साल के दौरान उसे 21 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज दहिंदगान को अदा करने हैं और अगले 3 सालों के दौरान इसे हर साल इतनी ही या इससे बड़ी रकम वापस करना पड़ेगी जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन 70 बिलियन डॉलर होगी। अब से 4 साल बाद क्या होगा? क्या हम अपने कर्ज दहिंदगान को तकरीबन 90 अरब डॉलर अदा करेंगे और सिर्फ 10 अरब डॉलर वाजिब अदा होंगे? बदकिस्मती से नहीं। हमारे पास कर्ज दहिंदगान को वापस करने के लिए वसाइल नहीं हैं। हमें सिर्फ एक कर्ज दहिंदा से कर्ज लेने की कोशिश करनी होगी ताकि दूसरे को अदायगी की जा सके। लिहाजा अब से 4 साल बाद हमें दुनिया को इस साल 21 अरब डॉलर से ज्यादा अदा करना होंगे और उसके बाद हर साल इससे कुछ ज्यादा। लिहाजा पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा कर्जों में डूबता रहेगा जब तक कि हम एक नया ख्याल नहीं आजमाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बरामद करें और करंट अकाउंट सरप्लस चलाएं। तभी हम किसी से कर्ज लिए बगैर दुनिया को वापस कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त तक हम एक तंग जगह पर हैं। ये समझने के लिए कि हम इस सूरत हाल तक कैसे पहुंचे, आइए थोड़ा सा बैकअप लेते हैं। जब पाकिस्तान अलकायदा और उनके अफगान तालिबान के मुहाफिजों के खिलाफ जंग का हिस्सा बना तो मगरिब पर हमारे ज्यादातर बैरूनी कर्जे मुआफ कर दिए गए। लिहाजा हमारे पास कर्जों की अदायगी ओहे में काफी कमी आई और हमारी ज़र मुबादला की ज़रूरियात सुकड़ गई। आज से 4 साल बाद हमें दुनिया को 21 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम अदा करनी पड़ेगी। 2002 के बाद ज़र मुबादला की हमारी बुनियादी ज़रूरत अपने करंट अकाउंट खसारे को पूरा करना था जो बरामदात और तरसीलात ज़र के मुकाबले में दरामदात की ज़ियादती है। जैसा कि हमने हर साल CAD जमा किया, हमारे कर्ज में हर साल इजाफा हुआ। याद रखें, क्योंकि हम करंट अकाउंट सरप्लस नहीं चलाते हैं और इस वजह से कभी खालिस ज़र मुबादला हासिल नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक जरिया से दूसरे को वापस करने के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला कर्ज लेते हैं और हमारा कर्ज कभी वापस नहीं होता है और सिर्फ बढ़ता है। 2007-08 में जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने पाकिस्तान का सबसे ज्यादा CAD चलाया तो पीपल्स पार्टी की आने वाली हुकूमत को मईशत को सुस्त करके इस खसारे को कम करना पड़ा। लेकिन एक बार जब मईशत सुस्त हो गई तो हमारी गैर मुल्की ज़र मुबादला के कर्जों की ज़रूरियात कम हो गई और मईशत कम और बेश मुस्तहकम हो गई। चूंकि पाकिस्तान की मईशत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रही थी और हम IMF के प्रोग्राम में शामिल नहीं थे, इसलिए दुनिया हमें कर्ज देने को तैयार नहीं थी और हमारे ज़र मुबादला के कर्जों में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ था। ताहम 5 साल के बहाव के बाद हम 2013 तक बिजली की शदीद किल्लत का सामना कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून में दाखिल हो जाओ और 2 चीजें हुई। एक, हमने IMF का मुआहदा किया और दूसरा, CPEC पर चीन के साथ मुआहदा हुआ। अब हम सरमायाकारी हासिल कर सकते हैं और पावर प्लांट्स और दीगर बुनियादी ढांचे के लिए चीन से कर्ज ले सकते हैं और अपने CADs की अदायगी के लिए बैन अल-अक़वामी बॉन्ड मार्केटों से कर्ज ले सकते हैं। ताहम CPEC कर्जा लेना सही काम था क्योंकि हमें वाकई बिजली, सड़क और गैस के बुनियादी ढांचे की जरूरत थी। ताहम मसला यह था कि चूंकि हमने उन सालों में अपनी बिजली पैदा करने की सलाहियत को दुगना कर दिया था, हमने उन 5 आने वाले 4 सालों के दौरान अपनी सनती पैदावार बरामदात को दुगना नहीं किया।
लिहाजा आज जबकि उन पावर प्लांट्स और गैस और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्जों की अदायगी की हमारी ज़रूरियात में इजाफा हुआ है, हमारी अदायगी की सलाहियत में इजाफा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि पावर प्लांट्स लगाना गलत था। इसका मतलब है कि हमने उन प्लांट्स से हासिल होने वाली बिजली का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। फैक्ट्रियां लगाने के बजाय हमने मजीद माल और शादी हाल बनाए। वाज़ेह रहे कि चूंकि ज़्यादातर बिजली और गैस मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत के इख्तिताम के करीब ऑनलाइन हुई थी, इसलिए वाकई सनती नहीं हो सकती थी। ताहम इन 5 सालों के अंदर ही एक मुकर्ररा शरह तबादला के नतीजे में पाकिस्तान की बरामदात से GDP ने हमारी तारीख में सबसे ज़्यादा गिरावट का रुख इख्तियार किया। लिहाजा तिजारती बैंकों और यूरो बॉन्ड्स से कर्ज लिया गया पैसा CAD की फिनांसिंग पर खर्च किया गया था। 2018 के बाद से PTI ने CAD को कम करने की कोशिश की, लेकिन करंट अकाउंट और मालियाती खसारे के दरमियान ताल्लुक को कभी तस्लीम नहीं किया। अपने 4 सालों के दौरान टैक्स टू GDP में नुमायां कमी आई और हमने अपनी तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा चलाया। PTI ने गुज़िश्ता 71 सालों में लिए गए तमाम कर्जों का 78% इजाफा किया और इस तरह इस बात को यकीनी बनाया कि हम न सिर्फ बड़े माली बल्कि बड़े करंट अकाउंट खसारे को भी चलाएंगे। ये समझना ज़रूरी है कि बजट खसारे किस तरह CAD का सबब बनते हैं। जब हमारी हुकूमत खसारे में चलती है तो उसे इसकी माली एआनत के लिए कर्ज लेना पड़ता है। ये रकम या तो सरमायाकारी पर मकामी निजी बचत के सरप्लस से या बैरून मुल्क से आ सकती है, लेकिन चूंकि मकामी बचत का कोई सरप्लस नहीं है, इसलिए हमारे माली खसारे को पूरा करने के लिए रकम बैरून मुल्क से कर्जों पर माली एआनत की जाती दरामदात की शक्ल में आती है, जिससे CAD में इजाफा होता है। एक और बात जो पॉलिसी साजों को समझनी चाहिए वो ये है कि अब मसाइल से निकलने के लिए CAD को कम करना काफ़ी नहीं है। बड़े कर्जों की अदायगी के साथ हमें या तो ज़्यादा कर्ज लेने की ज़रूरत होगी, इस तरह एक सेहतमंद मईशत की ज़रूरत है, या बरामदात के ज़रिए ज़र मुबादला कमाने की ज़रूरत होगी। हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? इसका जवाब सादा लेकिन बहुत मुश्किल है। हम मालियाती खसारे को शरह नमू से नीचे ले जाते हैं, करंट अकाउंट को तवाज़ुन में लाने के लिए ज़्यादा बरामद करते हैं, कर्जों की अदायगी और माशी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए निजकारी करते हैं और अपनी मुसाबकत को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी लाते हैं। निजकारी के लिए हिम्मत और इत्तेफाक राय की ज़रूरत होती है, जिसका हमारी क़यादत में फुकदान है। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे बढ़कर अमन और सलामती की ज़रूरत होती है, जो हमारी सिविलियन और फ़ौजी क़यादत 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से फराहम करने में नाकाम रही है। ज़्यादा बरामद के लिए दरामदात के मुतबादिल मॉडल से तब्दीली और मुआशी इस्तेदलाल की तफ़हीम की ज़रूरत होती है, जिसका बदकिस्मती से हमारे बेशतर पॉलिसी साजों में बरसों से फुकदान रहा है। आखिर में खसारे को कम करने का मतलब ये होगा कि तमाम मौजूदा अखराजात को इफ़रात ज़र की शरह से कम कर दिया जाए, गैर टैक्स वाले अफराद पर टैक्स लगाया जाए, जैसे खुर्दा और थोक तिजारत, ज़री ज़मीन पर फिक्स्ड टैक्स, सूबों को दी जाने वाली वफाकी रकम में कमी वगैरह। ये सब सख्त इक़दामात हैं, लेकिन तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन देखिए कि हमारी तरक्की न करने वाली मईशत किस कदर मुश्किलात का बाइस बन रही है। इस ज़मीन पर 36 में से सिर्फ एक शख्स पाकिस्तानी है, लेकिन 10 में से एक नाखानदा बच्चा पाकिस्तानी है। हमारे बच्चों के नशोनुमा के इम्कानात आलमी औसत के मुकाबले में दुगना और ज़ाय होने के इम्कानात 3 गुना ज़्यादा हैं। मुश्किल इस्लाही फैसले करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि आज रात पाकिस्तान में लाखों बच्चे भूखे सो जाएंगे। मज़मून निगार साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है। अखज़ शदा बतारीख 14 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.